ओके तो कभी कभी ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं कि डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी परफॉर्मिंग रोटेशनल मोशन। अब ये सारी बॉडी जो मेड अप ऑफ n नंबर ऑफ पार्टिकल्स, such a rigid body when perform a rotational motion, all the particles start describing the circle। कल हमने पढ़ा था कि ये सारे के सारे पार्टिकल जब एक रोटेट होते हैं दे फॉर्म अ सर्कल, एक सर्कुलर पाथ से वो घूमते रहते हैं और उन सारों के सेंटर्स एक्चुअली लाई एट द एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो बेसिकली ऑल दीज पार्टिकल्स विच are at a finite distance from the axis of rotation which describe the circle, these particles possess kinetic energy। अब बेसिकली kinetic energy का फॉर्मूला तो हमें को मालूम है, दैट इज 1/2 mv²। ओके तो यहाँ पे मैंने नोट डाउन कर दिया, दैट इज kinetic energy is equal to half of mv²। नाउ वी आर सेइंग कि these particle actually completes a circle, और एक सर्कल में हमने देखा है कि ओमेगा दैट इज w that is angular velocity, r for radius vector and v for the linear velocity, they all are mutually, they are actually perpendicular to each other and whose product can be obtained by v bar is equal to omega bar into r bar, okay, where the magnitude can be taken as v is equal to r omega। okay तो ये मैग्नीट्यूड वेयर v stands for linear velocity, omega stands for, that is w stands for angular velocity and r is the radius vector। ओके तो यहाँ पे अगर ईच एंड इंडिविजुअल पार्टिकल जिनके मासेस हमने डिस्क्राइब कर दिया, दैट इज m1 m2 m3 डॉट 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 mn, दीज आर एक्चुअली अजम्पशंस, और ये सारे पार्टिकल्स इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से कितने दूर है, दैट इज r1 r2 r3 एंड सो ऑन rn। अब ये सारे पार्टिकल्स जब सर्कल डिस्क्राइब कर रहे हैं और उनके सारों के सेंटर्स कहाँ लाइन करते हैं, अलोंग ऑन द एक्सिस ऑफ रोटेशन। ओके तो ये जो पर्टिकुलर डिस्टेंस है, दैट इज r1 r2 r3 r4, दीज आर नथिंग बट द रेडियस वेक्टर फॉर ईच एंड एवरी इंडिविजुअल पार्टिकल। ओके तो यहाँ पे जो v इज इक्वल टू r ओमेगा है, अगर मुझे फर्स्ट पार्टिकल का वेलोसिटी चाहिए तो इट विल बी r1 ओमेगा, फॉर सेकेंड इट विल बी r2 ओमेगा, फॉर थर्ड पार्टिकल इट विल बी r3 ओमेगा एंड फोर्थ पार्टिकल इट विल बी r4 ओमेगा एंड सो ऑन। ओके एंड सो ऑन। वन मोर थिंग आई वाज आल्सो मेंशनिंग that the omega, that is the angular velocity of the particle, remains constant। क्योंकि angular velocity का जो definition है, that is के the angular displacement with respect to time, ये सारे पार्टिकल एक सर्कल डिस्क्राइब करते हैं, that is a complete circle forms 360 degree and each and every individual particle takes same time to complete one circular motion and to come to the same position। That's why the angular velocity in these cases constant। So if we use this formula, that is v1 v2 v3 etc, अगर हम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फर्स्ट मॉलिक्यूल देखेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/2 m1 v1²। और जैसे कि मैंने बताया कि v1 मतलब क्या है, r1 ओमेगा, तो इट विल बिकम हाफ ऑफ m1 r1² ओमेगा। Similarly, for kinetic energy of a second particle, that is Ke2, half of m2 v2², that is half of m2 r2² omega², and so on till nth particle. We say the kinetic energy of nth particle is 1/2 mn vn², that is half of mn rn² omega²। I again mention that omega 1, omega 2, omega 3, all the angular velocities of these particles is a constant because they describe one circle and उसकी वजह से उनका angular velocity जो है वो constant है। They take same time to complete one revolution। okay? या आप one circular motion को भी बोल सकते हैं, uniform circular motion। Now for the kinetic energy total, I have to add these all the contents। अब ये सारे contents में अगर आप 1/2 m1 r1² ओमेगा², 1/2 m2 r2² ओमेगा² and so on 1/2 mn rn² ओमेगा²,
it will give you the summation of 1 upon 2 mi ri square omega square, where I stands from 1 to n. ये फर्स्ट पार्टिकल से लेके nth पार्टिकल का समेशन यहाँ पे मैंने लिख दिया. ओमेगा इज अ कांस्टेंट. तो इफ आई टेक 1 upon 2 omega square outside and that is summation of 1 upon 2 mi ri square, it is nothing but what? The moment of inertia. So you get the kinetic energy total का formula 1 upon 2 I omega square. If you compare with the equation that is 1 upon 2 mv square, it is similar, where in translatory motion the inertia of object is mass, where inertia in rotational motion is called as moment of inertia या rotational inertia. Similarly, the linear velocity in translatory motion, that is equivalent to the angular velocity in rotational motion. तो ये है हमारा derivation, that is the kinetic energy of a body performing rotational motion. That's it. तो सर्कुलर मोशन का सारा पार्ट फिनिश करके अब हम लोग बढ़ रहे हैं अपने चैप्टर में रोटेशनल डायनामिक्स. द नेम सजेस्ट. नाउ वी शुड नो व्हाट इज रोटेशनल मोशन. ओके, अब लीनियर मोशन तो हमने देखा है कि कोई भी ऑब्जेक्ट एक जगह से दूसरी जगह पे किस तरह से मोशन करता है, उसे ट्रांसलेटरी मोशन कहते हैं. बट ऐसे बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं, दे एक्चुअली रोटेट, जैसे कि द स्पिनिंग मोशन ऑफ द अर्थ, या जो आप बचपन में टैप यूज करते हैं खेलने के लिए, या मोशन ऑफ द ब्लेड्स ऑफ द फैन. सच एग्जाम्पल्स आर दी रोटेशनल मोशंस. ओके, और ये रोटेशनल मोशन को हमें आज स्टडी करना है. जैसे लीनियर मोशन में फोर्स रिक्वायर्ड होता है, किसी भी ट्रांसलेटरी मोशन को कंप्लीट करना है तो फोर्स इज रिक्वायर्ड. सिमिलरली देयर इज ए क्वांटिटी रिक्वायर्ड इन रोटेशनल मोशन, that is called as either movement of force or torque. That is, the rotational motion are not possible without torque. Okay, हमने पहले लेक्चर में जब एनालॉजी स्टडी किया था ट्रांसलेटरी मोशन और रोटेशनल मोशन में, तो शायद मैंने आपको ये भी बताया था कि मास लीनियर मोशन में या फिर ट्रांसलेटरी मोशन में है तो यहाँ पे मूवमेंट ऑफ इनर्शिया. ओके, जैसे भी कोई भी बॉडी का मास उसे मोशन को अपोज करता है, बिकॉज whenever we want to move any body, mass will resist its motion या offer resistance to the motion. Similarly, rotational motion में inertia is the responsible factor which oppose the rotation. उस rotation को वो oppose करता है. So the inertia offered to the rotational motion is also called as rotational inertia, or it is also called as movement of inertia. Take this example of a rigid body. Rigid body का मतलब होता है कि कोई भी बॉडी जो अपना साइज और शेप चेंज नहीं करता, ओके, इजीली चेंज नहीं करता, दैट इज कॉल्ड एज रिजिड बॉडी. Also such a rigid body, if we are imagining that it consists of n number of particles, okay, and each particle having masses m1, m2, m3 dot 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 till mn, and which compose to form an object or rotational body. Okay, so when such rigid body moves or rotates in a particular axis, all the molecules present on the rigid body will also perform circular motion. They actually perform rotation along the axis of rotation, but they describe one circle. Okay, और वो सारे सर्कल के सेंटर्स कहाँ पे अलाइन करते हैं? दे एक्सिस ऑफ रोटेशन पे अलाइन करते हैं. ठीक है, तो ये आपका टॉपिक है, दैट इज मूवमेंट ऑफ इनर्शिया. सो फॉर अ रिजिड बॉडी द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ द मास ऑफ इंडिविजुअल पार्टिकल्स एंड द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस ऑफ इट फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन. ओके, सो प्लीज keep in mind that the moment of inertia is a product of mass of each particle into square of its distance from the axis of rotation. तो यहाँ पे जो हम देख रहे हैं कि suppose a rigid body has particles, n number of particles, okay, and 1, 2, 3 are the number of the particles. Suppose m1, m2, m3 and mn be the masses of each individual particles, and
the distance from the axis of rotation, let us assume that r1, r2, r3 and rn, then we can get the moment of inertia is equal to m1 r1 square, m2 r2 square plus m3 r3 square dot 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 and so on mn rn square. Okay, so such moment of inertia can be given as the summation of mi to ri square i1 tends to n. दैट इज जितने भी उसके पार्टिकल्स है, हर पार्टिकल का मास और उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन से जो डिस्टेंस होगा उसका स्क्वायर, इन दोनों का प्रोडक्ट आपको देगा टोटल मूवमेंट ऑफ इनर्शिया. ये जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया है इसका यूनिट दैट इज ये प्रोडक्ट है मास और डिस्टेंस स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस का, तो इसका जो यूनिट हो जाएगा दैट इज kg इंटू मीटर स्क्वायर और डायमेंशन हो जाएगा जस्ट kg, दैट्स व्हाई इट इज m1 एंड मीटर स्क्वायर दैट इज l2. So it does not contain any quantity of time, so t will be 0. So dimension will be L2, M1 and T0. Before moving forward the next topic that is radius of gyration, first we understand what is the significance of moment of inertia. Okay, जो न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ है that is also called as the law of inertia. और ये inertia का मतलब क्या होता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट का जो ओरिजिनल पोजीशन है दैट इज द स्टेट ऑफ मैटर दैट इज कॉल्ड एज इनर्शिया, एंड एवरी बॉडी डज नॉट चेंज इट्स इनर्शिया अनलेस इट इज एक्टेड बाय द एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स. हमने ट्रांसलेटरी मोशन में देखा है कि जितना मास ज्यादा होगा उतना ज्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा उस बॉडी को मूवमेंट करने के लिए या मोशन करने के लिए. उसी तरह इन रोटेशनल मोशन में जितना ज्यादा मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होगा उतना ज्यादा टॉर्क रिक्वायर्ड होगा फॉर परफॉर्मिंग रोटेशनल मोशन. और ये जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया है वो 3 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है. सबसे पहला फैक्टर ये है कि जिन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल से ये रिजिड बॉडी या जो बड़ी है उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है. सेकेंड, उनके मासेस कितने हैं. Okay, that is individual mass of the particles which constitute a rigid body. And third, the geometry of a shape of the material. Okay, तो इसी से हम आगे अभी डिफाइन करेंगे कि what is radius of. तो ये जो movement of inertia है, ये कंसेप्ट यूज करके हम कुछ मटेरियल्स के movement of inertia फाइंड कर सकते हैं. जैसे कि movement of inertia of a sphere, movement of inertia of a uniform ring, movement of inertia of a uniform disc, movement of inertia of a solid cylinder, okay, and so on. तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिया है दैट इज के मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ यूनिफॉर्म रिंग. तो ये जो रिंग है उसका रेडियस इज कंसिडर्ड एज कैपिटल R. कैपिटल R इज द रेडियस ऑफ द रिंग. ओके, now this ring is made up of a finite number of individual particles जिनके mass will be equal. ये सारे जो constant particles हैं which actually form a ring, these are made up of a tiny particles and each particle will have a same mass. और ये सारी mass इस axis of rotation से एक same distance पर है. ये जो axis of rotation that is passing through center of the ring, बिकॉज ये जो रिंग है उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ लोकेट करता है एट द सेंटर. तो ये रिंग एक्सिस ऑफ रोटेशन पासेस थ्रू सेंटर एंड ईच एंड एवरी पार्टिकल इज एट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन. द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया विल बी द सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ ईच पार्टिकल एंड इट्स द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन. तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रिंग दैट इज I इज इक्वल टू समेशन I इक्वल टू 1 to n, बिकॉज एक से लेके n पार्टिकल का समेशन करना है, mi ri स्क्वायर. अब mi मतलब दैट इज मासेस ऑफ ईच एंड एवरी पार्टिकल दैट इज m1 m2 m3 एक्सेट्रा, और इन सारे मासेस की एडिशन क्या हो जाएगी दैट इज द टोटल मास ऑफ द रिंग. दैट इज टोटल मास ऑफ द रिंग.
mass of a ring, or what is r, that is radius of a ring. तो ये डिस्टेंस r1 r2 r3 ये सारे तो इक्वल है, that is summation of ri square will also be equal to r square. So we get this equation, that moment of inertia for a uniform ring. Now consider the uniform disk of mass capital M and the radius of capital R. It is a disk, जो CD आपने देखी रहेगी, that is a CD, या आप जनरली स्पोर्ट्स में भी वो यूज करते हैं. ओके, तो ऐसा डिस्क जिसका रेडियस कैपिटल R और मास कैपिटल M है, इट इज ए यूनिफॉर्म. अगर ये यूनिफॉर्म है तो इसका जो सरफेस डेंसिटी है दैट विल बी कांस्टेंट थ्रू आउट द मटेरियल. तो ये जो सरफेस डेंसिटी है जिसका फॉर्मूला विल बी मास अपॉन एरिया. सो वी नोट डाउन हियर दैट सिग्मा इक्वल टू m अपॉन a. Since the radius is capital R, it will be m upon pi r square. But ये जो डिस्क है, okay, that is made up of the concentric rings. और ये rings का जो radius है, that will be from smallest 0 to maximum capital R. और ये सारी rings एक दूसरे से overlap करके एक डिस्क फॉर्म करते हैं. So for the consideration, we consider a smallest concentric ring, innermost concentric ring, whose radius is small r and thickness is small dr. Let us assume that its mass is small dm. Okay, उसका जो mass है वो small dm है, that is innermost concentric ring का. I again explain. ये डिस्क है, ये डिस्क made up of concentric rings, और ये रिंग्स का जो मिनिमम जो रेडियस होगा दैट विल स्टार्ट फ्रॉम 0 टू कैपिटल R, बिकॉज कैपिटल R इज द मैक्सिमम रेडियस ऑफ द डिस्क, और स्मॉलेस्ट होगा वो 0 से स्टार्ट होगा. बट यहाँ पर एक कंसिडरेशन के लिए वी कंसिडर दैट द इनर मोस्ट कॉन्सेंट्रिक का जो रिंग है दैट इज स्मॉल r. उस रिंग का थिकनेस है स्मॉल dr. ओके, एंड उसका जो मास है दैट इज स्मॉल dm. So whatever the assumptions we have taken, we have mentioned here, starting from capital R, small r, dr and dm. Okay. Now we again move that अगर ऐसा है तो even for a small ring, the surface density should remain constant because जो डिस्क है वो तो यूनिफॉर्म है. तो यहाँ पे अपना जो एरिया का फॉर्मूला हो जाएगा 2 pi r into dr. दी सिग्मा इज इक्वल टू dm अपॉन 2 pi r dr. तो इस इक्वेशन से हमको dm मिलेगा 2 pi sigma r into dr, and we have noted down. Okay, now we move to the next equation, that is the moment of inertia का formula for the small ring. ये small ring के लिए moment of inertia क्या होगा? Product of mass into square of the distance. और यहाँ पे uniform ring होने के कारण उसका जो mass है that is dm, so it is integration of dm और ये r square. Okay, so the moment of inertia of ring will become dm into r square. तो ये तो इनर मोस्ट रिंग का हो गया. ऐसे n नंबर ऑफ रिंग्स है जो फॉर्म करते हैं इस डिस्क को. टू फाइंड द टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ डिस्क वी टेक I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dm r स्क्वायर, और यहाँ पे r स्टैंड r फ्रॉम 0 टू कैपिटल R. 0 इसलिए क्योंकि जो स्मॉलेस्ट रिंग है उसका जो रेडियस है वो मिनिमम 0 होगा, उससे तो कम होगा नहीं, और मैक्सिमम कैपिटल R होगा क्योंकि कैपिटल R इज द रेडियस ऑफ द डिस्क. तो यहाँ पे dm का जो फॉर्मूला है दैट इज 2 pi sigma r into dr. वी हैव नोटेड हियर दैट इज 2 pi sigma r into dr into r square. तो यहाँ पे ये r और ये r square विल फॉर्म r cube into dr. बाकी 2 pi sigma इज अ कांस्टेंट. तो यहाँ पे 2 pi sigma will take this equation out of this integration formula, और यहाँ पे हो जाएगा r cube dr. अब इंटीग्रेशन का रूल है कि x रेस टू n अगर इंटीग्रेट करना है तो हम क्या करते हैं, x रेस टू n प्लस 1 डिवाइड बाय n प्लस 1. ओके, यू मस्ट बी नोइंग कि अगर इंटीग्रेशन ऑफ x रेस टू n क्या होता है, x रेस टू n प्लस 1 डिवाइड बाय n प्लस 1. ओके, तो यहाँ पे ये फॉर्मूला हमने यहाँ पे अप्लाई कर दिया. तो 3 प्लस 1 r रेस टू 4 और यहाँ पे डिवाइड बाय 4.
अब यहाँ पे जो हमने फॉर्मूला मेंशन किया है दैट इज फर्स्ट नंबर पे सिग्मा इज इक्वल टू m अपॉन पाई आर स्क्वायर. यू इंसर्ट दिस फॉर्मूला हियर दैट इज सिग्मा के यहाँ पे m अपॉन पाई आर स्क्वायर का फॉर्मूला इंसर्ट करते हैं तो क्या होगा यहाँ पे ये आर स्क्वायर का टर्म और यहाँ 4 से निकल के 2 हो जाएगा. ओके फिर यहाँ पे पाई और पाई अगेन विल गेट कैंसल तो इक्वेशन हमें क्या मिल जाएगा और यहाँ पे 2 है दैट इज 1 इट विल बिकम 2. सो फाइनली वी गेट इक्वेशन I इज इक्वल टू 1/2 mr स्क्वायर. तो ये दो एग्जांपल्स हमने देखे कि अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रिंग और मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ डिस्क. आई रिपीट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया कंसेप्ट अगेन. हमने देखा है कि डिस्क इज ए यूनिफॉर्म और ये जो डिस्क कैसे फॉर्म होते हैं तो ये सारे कॉन्सेंट्रिक सर्कल से फॉर्म होते हैं और मिनिमम जो रेडियस होगा हमने यहाँ पे कंसिडर कर दिया स्मॉलर. एवरी कॉन्सेंट्रिक रिंग विल हैव अ सर्टेन थिकनेस. For a consideration, we take the thickness of this innermost concentric ring is dr. Okay? तो यहाँ पे हमने पहले सरफेस डेंसिटी का फॉर्मूला इंसर्ट किया. पहला जो टोटल सरफेस डेंसिटी m अपॉन ए दैट इज m अपॉन पाई आर स्क्वायर. बट यूनिफॉर्म होने की वजह से ये इनरमोस्ट रिंग में भी जो थिकनेस होगा और वो जो सरफेस डेंसिटी होगा दैट विल रिमेन कांस्टेंट. तो यहाँ पे सिग्मा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा 2 पाई आर ए आर दैट इज एरिया एंड सिग्मा इज dm अपॉन 2 पाई आर dm. तो यहाँ से हमने dm का फॉर्मूला नोट डाउन कर दिया. फिर आगे हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ इनरमोस्ट रिंग फाइंड किया दैट इज dm इंटू आर स्क्वायर. वो जो फॉर्मूला है मास इंटू प्रोडक्ट ऑफ मास इंटू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस. एंड यहाँ से मोमेंट ऑफ इनर्शिया I मिला r 0 से लेके कैपिटल आर तक dm इंटू आर स्क्वायर. देन यू इंसर्ट द वैल्यू ऑफ dm दैट इज 2 पाई सिग्मा r इंटू dr एट दिस पोजिशन. बाकी का इंटीग्रेशन पार्ट इज कंप्लीटली मैथमेटिक्स है जो आप कर सकते हो. ठीक है. ये जो सेंटर ऑफ मास होता है वी से दैट द पॉइंट एट विच द एंटायर मास ऑफ द बॉडी इज सपोज टू बी कॉन्सेंट्रेटेड दैट पॉइंट इज कॉल्ड एज सेंटर ऑफ मास. पूरे बॉडी का जो कंप्लीट मास है वो पूरा मास एक ही पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेट होता है जहां से हम एक डाउनवर्ड फोर्स भी एक्ट करता है दैट इज W इज इक्वल टू mg. ओके तो सपोज अगर हमने एक ऐसा पॉइंट कंसीडर किया जहां पे सारा मास अलोकेट हो गया है वहां पे मैंने C नाम दे दिया. उस पॉइंट को मैंने C नाम दे दिया दैट इज कॉल्ड एज द सेंटर ऑफ मास. तो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया I इज इक्वल टू समेशन ऑफ mi r I स्क्वायर दैट इज I स्टैंड्स फॉर I इज इक्वल टू 1 to n. सारे पार्टिकल का समेशन of product of mass and the square of the distance from the axis of rotation that should be equal to mk square where capital M stands for the mass of the total body and we are saying that the total mass of the body is concentrated at this point and k is the perpendicular distance between the axis of rotation and the point at which the entire mass of the body. इसका मतलब क्या है कि ये जो C पॉइंट है इस पॉइंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया विथ रिस्पेक्ट टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन कितना होगा दैट इज mk स्क्वायर वेयर k स्टैंड्स फॉर द डिस्टेंस बिटवीन द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ अ बॉडी एंड द एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास और वी कैन से इट इज द डिस्टेंस बिटवीन द एक्सिस ऑफ रोटेशन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ at which the entire mass of the body is supposed to be concentrated. Okay, तो ये जो radius of gyration है it is the only distance इसलिए इसका जो यूनिट होगा that is मीटर इन mks और cgs में सेंटीमीटर और डायमेंशन हो जाएगा L1, M0 and T0. Okay, that is the simplest. ये जो radius of gyration है it actually describes the particles which actually contributing the rigid body its distribution from the axis of rotation. That is the first point it describes that the distribution of constituent particles from the axis of rotation. Second, if the distribution of the particles are away from the axis of rotation its radius of gyration will also be more and if the distribution of the particle is close to the axis of rotation the radius of gyration will be less. Okay, so ये है अपना radius of gyration.